Good morning, student. This is exercise 1.4 of chapter 1, 9th class. In this exercise, there is given visualize 3.765 on number line. What do you mean by visualize? That is the represent 3.765 ऑन नंबर लाइन. ये वर्ड यूज़ हुआ है, आई विल टेल क्यों यूज़ किया हुआ है. बिकॉज द नंबर 3.765 को हम एक ही बार में लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उसको बार बार हम वहाँ से नंबर उठाएंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे नेक्स्ट लाइन के थ्रू. तो हाउ टू डू इट? द वेरी सिंपल मैथड. द 3.765 lie between 3 and 4. So how to make their equal distance? 1 centimeter you will take by scale. There is 3.1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6, 7, 8, 9 and 10. Now that this value is 3.1. This is 3.1. इसको 3.0 भी write कर सकते हो. Next is 3.2, 3.3. Mention here 3.4. 3.5, 3.6, 3.7 and 3.9 and the next one is 4. अब चेक करो फर्स्ट पॉइंट के बाद जो पहला लेटर वो क्या है आपका, पहला जो नंबर है वो क्या है आपका 7. तो कम है, दिस इज 0.7 एंड दिस इज 3.8. तो 7-6 पे जाने से पहले ये जो नंबर लाइन लाई करेगा 7-6 किसके बीच में लाई करेगा? 3.7 और 3.8. तो अपना ये इंटरवल रहेगा. इसको मैं विजुअलाइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. आपको पता है कि हम ऐसे कॉन्वेक्स लेंस से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं. बट रिप्रेजेंट करना है हमें किस पे? नंबर लाइन पे. तो मैं इस वाले जितना भी हमारा ये लाइन है 3.7 एंड 3.8 का अनदर एक लाइन बनाऊंगी. सेम लाइन. Here we write 3.7 और 3.8 मेड इक्वल 10 डिस्टेंस. आप यहाँ पे वही 1 सेंटीमीटर का लोगे. दिस इज 3.7 इक्वल डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और and this point is 3.70. next is 3.71, 3.72, 3.73. this is 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 and this last point 3.80. The next number is 3.76. We will clearly see that this is 3.76. Now the number 765 lie between which interval? 3.76 or 3.77. Again visualize by the lens. Then how to write in this space? Again make 3.76 and 3.77. सेम डिस्टेंस. आपको 10-10 का इंटरवल ही लेना है विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The first point is 3.760. next point is 3.761 and 3.762. दिस इज पॉइंट 3.762. अगर नीचे स्पेस नहीं है तो यू राइट अप 3.76. दिस इज द पॉइंट 3.763. नेक्स्ट पॉइंट 3.764. नेक्स्ट पॉइंट 3.765, 3.766, 3.767, 3.76. Okay, this is point 3.767, 3.768,
This point is 3.769 and the last point is 3.770. आपको रिप्रेजेंट करना था 3.765, तो वेयर इज द पॉइंट 3.765? दिस इज योर नंबर सर्कल इट. That is called visualizing method of 3.765 on number line. In 1.4 second question as it is. Second question is same. Visualize 4.26 bar is here on the number line. No problem, bar is given. You will write here 4.26 bar on 26. तो आप 2626 को रिपीट करोगे, लेकिन यूजुलाइजिंग में कंडीशन है सिर्फ हम 0.3 प्लेस तक ही यूजुलाइज करते हैं, उसके बाद यूजुलाइज नहीं करते हैं. तो दिस नंबर इज सेम. हम किसको यूजुलाइज करके दिखाएंगे? 4.262 को. डू यू नो द नंबर लाई बिटवीन 4.262? दिस नंबर लाई बिटवीन 4 and 5. तो फर्स्ट वी मेक द लाइन हियर. This number is 4.0 and this last point 5.0. Between same procedure आपको 10 लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलो एक एक्स्ट्रा होगा, इसको कट कर दो. दिस इज द पॉइंट 5. इसको राइट करोगे आप 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and this is the point 5.0. The number 4.26 हमें सिर्फ 2 पे फोकस करना है. Where is the point 4.2? The lie between this interval 4.2 and 4.3. Visualize this line. आपको सेम विजुलाइज करना है इस लाइन को. Now this is a point 4.2. The interval between 4.2 and 4.3 you can see here. 4.20 से हमने स्टार्ट किया and then come to 4.30. What is the next number? This is 4.26. Where is the 4.26? This is the number 4.26 lie between next. This is over interval 4.26 to 4.27. In the next line, this interval represented by this another line. This is 4.26 and up to 4.27. The process is repeating again. There is given 4.262. So very simple. And this is 4.260. Next number 4.261, 4.262. Here is the number 262. तो आपको सिर्फ यहाँ सर्कल करना है, बट आपको इसको भी कंप्लीट करना है. डोंट लीव as it is, and this is our number represent on number line. Okay, this is not the part of exercise 1.4. This is the part of exercise 1.5, but this is also a construction part, so we will discuss in this part in this video. So you can learn how to represent root 3.5 on a number line. अब तक हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शो किया था रूट 2, रूट 3, रूट 5. तो आपने स्पायरल के थ्रू रूट 2, रूट 3, रूट 5 को रिप्रेजेंट किया था ऑन नंबर लाइन. बट इन दिस केस देयर इज गिवन रूट 3.5. तो वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी टाइम कम इन एग्जाम. हाउ टू रिप्रेजेंट 3.5 ऑन ए नंबर लाइन? वेरी सिंपल वे. फर्स्ट वी टेक 3.5. ड्रॉ ए लाइन with 3.5. This is, I will take 3.5. Mark a point here. हम पॉइंट कर लो क्योंकि आपने कितना लिया है 3.5 सेंटीमीटर. इन नेक्स्ट स्टेप आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है. प्लीज़ फोकस हियर. मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है. वी विल टेक हियर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा. 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है और इस लाइन को नाम देना है आपको A एंड B. आपको 2 स्टेप बताए हैं मैंने. इन फर्स्ट स्टेप वी ड्रॉ ए लाइन 3.5 सेंटीमीटर, देन एक्सटेंडेड लाइन बाय 1 सेंटीमीटर. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी डू? हम उस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे. तो एवरीबडी नोज दैट हाउ टू बाइसेक्ट. हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और एक आर्क यहाँ से लगानी है. सेकेंड आपकी यहाँ से आएगी.
तो ये आपकी लाइन बाइसेक्ट हो जाती है। लाइन को बाइसेक्ट करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ बाइसेक्टर के लिए डॉटेड लाइन लो। तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम देना आपको ओ। एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल है, आपको यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपने जहाँ वो पॉइंट मेंशन किया था, जहाँ 3.5 आपका ख़त्म हो रहा था, उस पॉइंट का नाम दो सी, और वहाँ पे एक एंगल बनाओ 90 डिग्री। This is example of your exercise 1.5. So you can see in example also. I will draw how to do this question. This is 90 degree angle. Join this line, and this line is root 3.5. यही लाइन आपकी क्या है, रूट 3.5 है। राइट हियर दिस इज 3.5, बट हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक्चुअल में लाइन हमारी यही है। तो आप इसको यहाँ से ओपन करके मेज़र करो। दिस इज़ रूट 3.5। अगर हम इसको डॉटेड यहाँ नीचे लेके आएंगे तो अपनी लाइन पे आ जाएगा। एंड दिस इज़ अवर डिस्टेंस, ये अपना जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आपका रूट 3.5 है। दिस डिस्टेंस इज रूट 3.5। वेयर इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 एंड 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका रूट 3.5। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। So I will tell next exercise also. There is given one question root 9.5, but this is example of NCERT book. Okay, I hope आपको ये समझ आ गया होगा कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड आप इजीली कर पाओगे आपकी नोटबुक में। सो डू इन फेयर नोटबुक। गुड डे।